Hello dear students, welcome back. Today we will continue our chapter number 7, Gupta Age and Other Rulers. In the previous video we discussed about Chandragupta I and Chandragupta II. Now today we will continue at this topic and of Gupta dynasty. After the death of Chandragupta II, his majestic son Kumar Gupta I came to throne. During his time, some famous caves of Nalanda and some famous caves of Ajanta were erected. After Kumarpal I, his brave son Skandagupta came to power. The weak rulers of post-Skandagupta time could not withstand the onslaught attack on the obsessive and powerful Yunus, and Gupta Empire disintegrated in 550 AD. Administration of Gupta age. We get information about administration during Gupta age from records, smritis and Puranas. According to governing body was divided into three sections: central, provincial and local. Emperor was the center of Gupta administration. He adopted title like Maharaja Dhiraj, Param Bhagavat. Usually, prince was appointed as the head of province. Kumar Matya and commissioner played a major role in the province. The province was called Bhukti, whose head was regional. The province was divided into districts. The districts was called विषय. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रोविंस है ना उनको भुक्ति कहा जाता था, और जो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते थे जो प्रोविंस थे वो, तो डिस्ट्रिक्ट को विषय कहा जाता था. ठीक है. The committee was formed at the village level, which included elders, village heads and important adult citizens. तो जो कमेटी थी वो विलेज लेवल पे भी डिवाइड होती थी और वहाँ पे भी फॉर्म होती थी. तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होता था विलेज कमेटी में? जो उस विलेज के एल्डर्स थे, विलेज के जो हेड थे और अडल्ट सिटीजन्स. ठीक है. Economic condition during Gupta age. In economic term, Gupta age was a golden period. हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, जो गुप्ता एज थी, जो गुप्ता पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था. मीन्स उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी होगी, है ना. फार्मिंग, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल वेरी डेवलप्ड. स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड एनुअल, 3-year and 5-year farming. Wheat, rice in North India, sugarcane in Gandhar, grapes and kesar in Kashmir, and coconut in Kanpur were grown. Rice was grown in large quantity in Bengal, cotton in Gujarat and Sindh, and silk was produced in Bengal. Trade of condiments and spices, silk and cotton has developed in South India. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के नाम जो मैंने अभी बताए और वो कौन से एरिया में वो ग्रो होते थे वो भी बताया हुआ है. ठीक है. किंग यूज टू टैक्स 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. लैंड वॉज डोनेटेड टू ब्राह्मण एंड टेम्पल्स. तो जो किंग थे ना वो जो टैक्स लेते थे, तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/6 पार्ट वो टैक्स में लेते थे, और जो भी लैंड होती थी या जो भी मिलता था एज ए टैक्स, तो वो ब्राह्मण के लिए या टेम्पल्स बनवाने में वो डोनेट कर देते थे, वहाँ यूज़ करते थे. इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एपिटम ऑफ गुप्ता एज. कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वेर एक्सपोर्टेड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया. हम अभी इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है, बट गुप्ता एज में भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था. इंडिया टू यूरोप, इंडिया से सामान यूरोप भेजा जाता था. While cotton, silk, spices, condiments and timber were exported
to east and west of the world through international ports like Khambat, Bharuch, Sopara and Tamralipti. Gold, silver and other items were imported. खंभात, भरूच, सोपारा एंड ताम्रलिप्ति ये पोर्ट के नाम है जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती थी, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्टर्न ऑफ द वर्ल्ड। जबकि हम गोल्ड एंड सिल्वर और भी बहुत सारी आइटम्स है जो हम इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट इज रिलीजियस स्टेटस। Hinduism and Indian culture are seen in full swing during Gupta age. गुप्ता एज के ड्यूरिंग हिंदुज़म मीन्स इंडियन कल्चर है वो बहुत ही मतलब इंडियन कल्चर ही ज़्यादातर फेमस था गुप्ता एज के ड्यूरिंग, वही फॉलो करते थे लोग, ठीक है। द गुप्ता एम्परर्स गेव वैष्णविज्म द status of state religion. As a result, Vishnu, his avatars Sri Ram and Sri Krishna were mostly worshipped at this time. तो जो हमने पहले ही पढ़ लिया था ये कि गुप्ता एज के ड्यूरिंग वैष्णविज्म जो किंग थे एम्परर वो वैष्णविज्म में मानते थे, ठीक है, उनके फॉलोवर्स थे। तो विष्णु के बहुत ही अवतार है, उसमें से मेन अवतार जो हम ज़्यादा सुनते आ रहे हैं वो है श्री राम एंड श्री कृष्ण। तो गुप्ता एज के ड्यूरिंग श्री राम एंड श्री कृष्ण इनकी वर्शिप मोस्टली होती थी, ठीक है। लक्ष्मी बिकम वेरी फेमस गॉडेस। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली दैट रामायणा एंड द महाभारता एज वेल एज द पुराणास वेर recompiled. श्रीमद् भगवद गीता बिकम वेरी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिस टाइम। अभी श्री राम और श्री कृष्ण की बात करें तो रामायण एंड महाभारत एंड और भी बहुत ही पुराण थे और भगवद गीता उस टाइम पे बहुत ही फेमस थे और उनके टेक्स्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता एज। हमने ये भी पहले पढ़ा था, जो यहाँ के किंग थे वो सिर्फ वैष्णविज्म नहीं फैलाते थे, उनके साथ वो दूसरे जो रिलीजन्स थे उनको भी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो उन्होंने वैष्णविज्म के साथ साथ शैविज्म भी अच्छे से डेवलप हुआ था उस टाइम पे। इन साउथ इंडिया शैव सेंट वेर कॉल्ड नयनार वाइल वैष्णव सेंट वेर कॉल्ड अलवर इन साउथ इंडिया। महिषासुर मार्दिनी, महिषासुर को किसने मारा था? माँ दुर्गा ने, है ना। वॉज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलरली वर्शिप्ड हियर। द वर्शिप ऑफ कार्तिकेय वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग गुप्ता एज। कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता age was culturally golden age of India. Many new languages developed during this age. Kalidas, Skandaswami, Hariswami and Rani Vijaya and Aryasur were important literatures. Among all of them, Kalidas was the best. Kalidas is called the Shakespeare of India. स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुप्ता एज था ना वो कल्चरली भी गोल्डन एज ही था, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई थी। उसमें से जो कालिदास है, स्कंद स्वामी है, रानी विजया, हरिस्वामी, आर्यासुर, ये सब इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स भी थे, ठीक है। और उन सब के बीच में जो कालिदास थे वो बेस्ट थे और कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, he wrote epics like अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम। ये जो अभी मैंने नाम बताए वो एपिक्स है जो कालिदास ने लिखे हैं। गुप्ता एज वॉज एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गोप इन गुजरात, पार्वती टेम्पल ऑफ नचाना कोठार एंड टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इनके टाइमिंग में गुप्ता एज के पीरियड में बहुत सारे टेम्पल्स भी बने, इसके लिए उनको टेम्पल आर्किटेक्चर्स भी वहाँ पे बहुत सारा हुआ था। तो उसमें से गुजरात का गोप, पार्वती टेम्पल है, झांसी का टेम्पल है, वो फर्स्ट टाइम बनाए गए थे इन इंडिया में।
The Gupta age marks the beginning of the temple architecture. The idols of Durga, Buddha, Krishna, and Shiva were made in large number. Condition of science during Gupta age. Aryabhatta and Varhamira were among the greatest scientists of this period. आर्यभट्टा डिस्कवर जीरो एंड डेसिमल सिस्टम. स्टूडेंट्स, हम अभी भी जीरो एंड डेसिमल सिस्टम तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है. 6th स्टैंडर्ड में भी डेसिमल सिस्टम एक है चैप्टर में, तो वो आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया है, ठीक है. वरहामिरा रोट एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट नेम बृहद संहिता. तो वरहामिरा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा था टेक्स्ट, उसका नाम है वरहामिरा, विच वॉज रिलेटेड विथ एस्ट्रोनॉमी. Vagbhat wrote a great text on Ayurveda named अस्थंगृदय संहिता. तो ये जो वाग्भट है उन्होंने भी आयुर्वेद के लिए बहुत ही अच्छी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अष्टंगृदय संहिता. ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन डेवलप्ड फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स. ह्यूमन्स के लिए तो मेडिसिन इन्होंने डेवलप की थी, बट एनिमल्स के लिए भी मेडिसिन डेवलप हुई थी तभी, ठीक है. Even medicines were also discovered for elephant and horse. Elephant and horse के लिए भी medicines develop हुई थी. Chemistry also developed quite well. Its best example is iron pillar of Mehrauli near Delhi, which is not corroded even today also. हमने आगे ही एक टॉपिक में पढ़ा था मेहरौली के आयरन पिलर है, ठीक है. तो वो अभी तक दिल्ली में है सिचुएटेड, बट फिर भी उनको जंग या फिर कोरोडेड नहीं हुए हैं, ठीक है. तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है. गुप्ता एज के टाइम पीरियड में साइंस भी गोल्डन एज ही कहा जाता था. साइंस भी बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ था. नाउ हम जो पढ़ रहे हैं वो है एम्परर हर्षवर्धन. अभी हम एम्परर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे. After Gupta age, the kingdom of Harshvardhan is considered as one of the important states of ancient India. He belonged to Pushya Bhuti clan of Thaneshwar. Rajyavardhan and Harshvardhan were sons of Prabhakar Vardhan. राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन ये दोनों भाई थे, ठीक है. उनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन. While his daughter was राजेश्री. तो प्रभाकर वर्धन की एक बेटी भी थी, उनका नाम था राजेश्री. Who was married to king of कन्नौज ध्रुव वर्मान. तो राजेश्री ने कन्नौज के किंग थे ध्रुव वर्मान, उनसे मैरिड, उनसे शादी की हुई थी. God king Shashank and king of Malava kidnapped राजेश्री and attack on the kingdom. तो गॉड के किंग थे शशांक एंड मालवा के किंग, इन दोनों ने राजेश्री को किडनैप किया था और उनकी जो किंगडम थी कन्नौज, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, विच क्रिएट्स अ मेजर क्राइसिस. राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू सेव राजेश्री. तो ये दोनों जो भाई थे राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन, वो अपनी बहन को सेव करना चाहते थे. तो यहाँ पे जो उसकी बहन को किडनैप करके लेके गए, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही मेजर क्राइसिस हुए और जो वॉर हुआ उसमें राज्यवर्धन की डेथ हो गई थी. इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन एम्परर हर्ष ascended the throne in 606 AD. He saved Rajeshri. Not only this, he started his proper rule in both the state कन्नौज एंड थानेसर. तो उसकी बहन तो अभी किडनैप हो गई थी, भाई की भी डेथ हो गई. तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने 606 AD के टाइम पीरियड में इन्होंने हैं ये दोनों जो प्लेस थी कन्नौज और उनका खुद का जो था थानेसर, इन दोनों जगह पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क किया और अपनी बहन राजेश्री को सेव भी किया था. Harshvardhan was last great emperor of ancient India. He spread his empire in Magad, Odisha, Saraswat,
God and Mithila. In contemporary states, Mertak king Dhruv Sen was his son-in-law. Pulkeshi too was the most powerful ruler in the south. In the Battle of Narmada between Harshvardhan and Pulkeshi, Harshvardhan was defeated. Harshvardhan was regarded as the powerful king in north of Narmada. हर्षवर्धन जो थे वो एंशंट इंडिया के लास्ट और ग्रेट एम्परर थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो मगध में, उड़ीसा में, सरस्वत, मिथिला, गौड़, इन सब जगह पे अच्छे से स्प्रेड किया हुआ था। तो उनके जो सन इन लॉ है उनका नाम है किंग ध्रुव सेन। तो हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू, इन दोनों के बीच में नर्मदा है, वहाँ पे बैटल ऑफ नर्मदा, वहाँ पे उन लोगों के बीच में वॉर हुआ था जिसमें पुलकेशी टू है वो जीत चुके थे और हर्षवर्धन है वहाँ पे डेफर्ट हुए थे। हर्षवर्धन वॉज डेफर्टेड, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है वो पावरफुल किंग थे इन दी नॉर्थ ऑफ नर्मदा। कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Great Chinese traveler Yung Stang came to India during his time. तो हर्षवर्धन जो है उनका कल्चरल में भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम है युंग स्टैंग, वो भी इंडिया आए हुए थे। He stayed in his palace. Harsh was devotee of Shiv and later become a great follower of Buddhism. तो ये जो युंग स्टैन थे वो हर्षवर्धन के पैलेस में रुके हुए थे। तो हर्षवर्धन थे वो भक्त थे किनके, भगवान शिव के, लॉर्ड शिव के, और फिर वो बुद्धिस्ट के फॉलोवर हो गए। He organized a religious conference under the presidentship of Yung Stang. He placed the idol of Buddha on mantle of elephant and worshipped. A seminar was organized on Mahayana and Hinayana. Emperor Harsh had passion for literature, art and education. Great poet Banbat was associated with his court. He had written great volumes like Harshcharitam and Kadambari in Sanskrit. जो हर्षवर्धन थे उनको लिटरेचर का, आर्ट का एंड एजुकेशन मीन्स बहुत ही उनको पैशन, बहुत ही शौक था, बहुत अच्छा लगता था। तो जो ग्रेट पोएट थे बनबट, उनके साथ उन्होंने एसोसिएट किया और उन्होंने बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स मीन्स बहुत ही अच्छी बुक्स या फिर जो कहें वो लिखा था। उनमें उनका नाम है हर्षचरितम एंड कादम्बरी संस्कृत लैंग्वेज में। मयूर भट्ट and Jay Surya were also great poets of the time of Harsha. Emperor Harsh himself also was the high-ranking literary figure. He composed 2 plays called प्रियदर्शिका and रत्नावली। तो हर्षवर्धन खुद भी हाई रैंकिंग के लिटरेचर थे, तो उन्होंने भी 2 प्लेस कंपोज किए थे। तो उनका नाम है प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। Along with it, he also wrote a special play based on जातक stories of Buddha named नागानंदा। उन्होंने एक और प्ले भी लिखा था जो बुद्धा की जातक स्टोरी के ऊपर है और उस प्ले का नाम है नागानंद। ओके। हर्ष also formed friendly relations with other countries. He sent a delegation to China. Similarly, a Chinese delegation also visited India. In this way, Harsh was high-ranking ruler, conqueror, administrator, and literature. He donated 100 villages to sustain नालंदा विद्यापीठ। तो उन्होंने नालंदा विद्यापीठ भी बनाई थी जिसके लिए उन्होंने 100 विलेजेस को डोनेट किया था। ओके। नाउ पुलकेशी टू
हमें पता ही है कि पुलकेशिन कौन थे जिन्होंने हर्षवर्धन को डेफेटेड किया था, ठीक है। Among the contemporary king of Emperor Harsh's time, Pulkeshi II was the most powerful Chalukyan king. He took the power from Rashtrakutas in Maharashtra and established a state. पुलकेशी टू है, उन्होंने एम्परर हर्ष के टाइमिंग में ये पावरफुल किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा के जो पावर था महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी उन्होंने अपना पावर स्टैब्लिश किया था। पुलकेशी टू रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। ही इवन डेफटेड एम्परर हर्ष। 40 ईयर्स तक तो उन्होंने रूल किया ही था, लेकिन हर्षवर्धन को भी उन्होंने हराया था। He was a great winner. After defeating Kadamba, Gangas of Maheshwar, Mauryas of Konkam, he received the title of Lord of the South. तो साउथ के कुछ किंग थे जिनका नाम है कदम्ब, गंगास ऑफ महेश्वर, मौर्यास ऑफ कोंकण। इनको उन्होंने डेफट किया था और उसके बाद इनको एक टाइटल मिला था, वो टाइटल था लॉर्ड ऑफ द साउथ, ठीक है। ही ऑल्सो डेफटेड लाट, मालव एंड गुर्जर्स। ही वॉज अ रूलर ऑफ ऑल रिलीजियंस ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कोंकण। Just like Harsh, he had also developed relations with other countries. He had sent one of his ambassadors to Iran's emperor खुशरो टू, वो वॉज हिज फ्रेंड। तो उन्होंने अपना एक एम्बेसडर था उसको भी, जिसका नाम था एम्परर खुशरो टू, जो उनका फ्रेंड था, तो उनके पास उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भी भेजा था, ठीक है। अदर स्टेट्स एट दिस टाइम, अदर स्टेट्स इंक्लूडेड पाल्लवास ऑफ कांची, गुर्जर्स, प्रतिहारास of Rajasthan, Maitraks of Vallabhi, Gurjars in South Gujarat, Karkotako of Kashmir, etc. Pallavas of Kanchi had become famous for their architecture and art. They built many temples of Brahma, Vishnu, Mahesh by cutting rocks. Pallavas who built Chariot temple on seashore have increased India's cultural prosperity. Kailashnath temple built in Kanchipuram can be considered as the best temple of that time. तो ये जो अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे किंग के बारे में हमने नाम पढ़े जिन्होंने इंडिया में कुछ ना कुछ बिल्ड करवाया, जो एट प्रेजेंट भी इंडिया का कल्चरल प्रॉस्पेरिटी में हम उन्हें शामिल करते हैं, ठीक है।